Good afternoon, everybody. I'm very proud to present Dr. Chirag Sethi, somebody who has played a very key role in my nutrition and my journey to the Paralympic medal and also the new Asian record, my gold at Grand Prix in Dubai, and also the two medals that I have created and made for India in 2018 Jakarta, Indonesia. A journey of 4 years that I have been under his guidance, and I continue to be under his guidance for my nutrition, for my weight control. I am a hypothyroid patient and somebody who has very less moment in the body. So sports nutrition becomes a very, very key ingredient in success of any athlete, and especially athletes in disability. Let me introduce Dr. Chirag Sethi. He is a master's degree holder in sports physiotherapy. He has also done post-graduation diploma in nutrition and dietetics, PGDAND. He has done certifications from American College of Sports and Medicine and American Council of Exercise. Chirag holds expertise in sports supplementation, lifestyle and weight management, nutrition, exercise, counseling, and health coaching. He has been awarded the Stalwart Fitness Education Award at the Fitness Excellence Award in 2017 at New Delhi. 2018, he was awarded as the Visionary in Fitness Education at the Fitness Excellence Award in 2018, New Delhi. He has played instrumental role in educating over 15,000 fitness professionals till date. He is also the founder of India's leading fitness education institute, Classic Fitness Academy, awarded as the best fitness academy in India at the Fitness Excellence Awards for 3 consecutive years, 2017, 18, and 19. And not only the nutritionist, but it is his students, whether it was Vaibhav Sirohi, Vivek Sirohi, or Vinay Sangwan. They have been my fitness gym trainers, so they have also been his student. What an honor to welcome you and introduce you to the rest of the fraternity of parasports. Welcome, Chirag, and the floor is yours. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for giving me this opportunity. And as always, I love these kinds of interaction where I can reach to more and more people. So for today's session, हिंदी इंग्लिश को मिक्स रखेंगे so that हम सब लोगों से बात कर सके. तो थोड़ा सा आज हम बात करने वाले we're going to talk about nutrition specifically related to the para sports. आज जो हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन वैसे भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हम लोगों ने कर दिया है. न्यूट्रिशन एज अ वर्ड इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट जिस तरह की हमारी आदतें और जिस तरह का मार्केटिंग हमारे अराउंड होता है, सो इवन फॉर अ नॉर्मल पर्सन न्यूट्रिशन इज चेंजिंग. ओके, बट व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स, द डिमांड्स ऑफ द स्पोर्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, एक रनर है, आप ट्रेडमिल पे जिम में भी भागते हैं, अपने घर पे भी भागते हैं, पार्क में भी भागते हैं, बट आप हुसैन बोल्ट को देखेंगे तो ही इज लाइक अ मशीन. Okay. Similarly, when you come to para sports, there are a lot of athletes who are runners. Okay, I see amputees who are running. So all of us have to see one thing in common कि सबका जो nutritional requirement है वो same नहीं होने वाला. Somebody has a different nutritional requirement, other person will have a different nutritional requirement depending on the kind of injury the person has or the kind of I will use the word disability the person has. So based on that we have to make those plans. Okay, so nutrition को कभी complicated मत समझना. जितना complicate करोगे nutrition को, जितने fads के पीछे भागोगे, जितनी marketing के पीछे भागोगे, वो सब खराब रहेगा. अगर आप सिर्फ normal nutrition की बात करते हो तो अपने meals को ढंग से prepare करो. एक बहुत छोटी सी चीज जो हम हमेशा सिखाते हैं, अपने क्लासेस में भी सिखाते हैं और हर जगह सिखाते हैं, दैट इज यू हैव टू ऐड कलर्स टू योर फूड. दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग कि अपने फूड जो है, अपने प्लेट जो है, उसमें देखिए कितने कलर्स आप ऐड कर पा रहे हैं, कितनी चीजें आप ऐड कर पा रहे हैं, फ्रूट्स के तौर पे, वेजिटेबल्स के तौर पे. यू जस्ट हैव टू ऐड दोस कलर्स. ओके, दीज आर फॉर नॉर्मल पीपल और पीपल हु आर लुकिंग एट परफॉर्मेंस. जब हम बात करते हैं पैरा स्पोर्ट्स की, नॉट टॉक अबाउट एबल बॉडीज एथलीट्स, आई टॉक अबाउट पैरा स्पोर्ट्स. पैरा स्पोर्ट्स में बहुत तरह के एथलीट्स आपको मिलेंगे. देयर विल बी पीपल फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो कि व्हीलचेयर पर होंगे, किस लेवल की इंजरी है. जब आप न्यूट्रिशन प्लान करते हो तो लेवल ऑफ इंजरी को जानना बहुत जरूरी होता है. हाई लेवल इंजरी है कि लो लेवल इंजरी है, सर्वाइकल का कौन सा वर्टिब्रा है, थोरेसिक का कौन सा वर्टिब्रा है, या लंबर है, कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे इंजरी हुआ था
या कोई ट्यूमर था या कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था या क्या था, इसका कारण क्या होगा, ये मुझे जानने की जरूरत क्यों है? मुझे जानने की जरूरत इसलिए है कि कुछ ऐसे केसेस होंगे जहां पर आपका जो पेट है, स्टमक जैसे बोलते हैं गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, वो डिले हो जाता है या वो ठीक से हो नहीं पाता। तो ये वो एथलीट्स होंगे बेचारे जो अच्छा न्यूट्रिशन भी प्लान करेंगे, अच्छा न्यूट्रिशन भी लेंगे, बट उसके बाद भी उनको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप उनको सब चीजें अच्छी दे रहे हैं, बट उसके बाद भी उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा बिकॉज उनका गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जो है वो डिले हो रहा है। ओके, तो ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आपका जो एथलीट है वो किस लेवल की इंजरी पे है, स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट्स में। ओके, थोरेसिक के लेवल पर है कि उससे लोअर लेवल्स पर है कि हायर लेवल पर है, क्वाड्रिप्लीजिया मतलब चारों लिम्स काम नहीं करते, या फिर पैराप्लीजिया है, पैर नहीं चलते, ट्रंक में कितना मूवमेंट है, ये सारी चीजों को समझना आपको जरूरी है। मील्स किस तरह की आप प्लान कर सकते हो, एथलीट्स हैं ये लोग को भी मैक्रो का उतना ही रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन का उतना ही रिक्वायरमेंट है, फैट्स का उतना रिक्वायरमेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स का उतना रिक्वायरमेंट है, बट यू ऑल्सो हैव टू सी कि फिजिकल एक्टिविटी जो है वो कंपेरेटिवली कम रहेगी। तो हम किस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं? Okay, there are various equations that we use. Harris-Benedict equation है, Cunningham's equations है, जो हम यूज करते हैं to calculate कि एवरेज कैलोरीज कितनी होनी चाहिए। बट आई वुड से वो थियोरेटिकली तो चलता है, बट प्रैक्टिकली आपको ये भी देखना है कि हर खाने का इम्पैक्ट आपके एथलीट पे क्या होने वाला है। हो सकता है कि ज्यादा प्रोटीन देने से एसिडिटी हो, और अगर आपका एथलीट व्हीलचेयर पर है, व्हीलचेयर बाउंड है, तो वो उसके लिए बहुत एक प्रॉब्लम हो सकती है। डेफिनेटली he'll be or she'll be very discomfort on the day of the event। तो आपको ये भी देख के चलना है कि क्या किस तरह की चीजें हम लोग उसको देने वाले हैं। ओके, सो ये कुछ एक चीजों को दिमाग में रखे जब हम पैरा स्पोर्ट्स की बात करते हैं कि किस तरह का एथलीट है। हो सकता है कोई एम्प्यूटी है, तो हो सकता है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस एम्प्यूटीज जो होते हैं दैट इज अ वैस्कुलर बेस्ड डिजीज, कोई भी वैस्कुलर या ब्लड वेसल से रिलेटेड डिजीज होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उनका लिम्ब जो है एम्प्यूट करना पड़ता है। वहां पर हमें ये भी देखना होता है कि स्वेटिंग कितनी हो रही है, क्योंकि होता क्या, जैसे जैसे आपका एथलीट स्वेट करेगा, उसका जो प्रोस्थेटिक आर्म है, उसका प्रोस्थेटिक लेग है, वो ढीला होने लग जाता है। आई थिंक if there is an athlete she can relate to this। तो ये आपको बहुत समझना जरूरी है कि वाटर लॉस भी हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस भी हो रहा है, और किस तरह से हम बॉडी टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। We can look at the hydration, how we are looking at the hydration, how we are looking at the carbohydrate intake for these people। We also have to look at performance based ingredients कि किस तरह का स्पोर्ट्स है। ओके, सबसे पहली चीज जो आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा कि किस तरह के डिसेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्या हम एम्पुटेशन की बात कर रहे हैं, क्या हम कोई विजनरी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, क्या हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अपने एथलीट के बारे में जानो कि किस तरह की उसकी इंजरी है और किस तरह का प्रॉब्लम्स दिस ही और शी विल बी फेसिंग व्हेन द पर्सन गोज फॉर अ पैरा स्पोर्ट। ओके, अगर मैंने जैसे कहा Chirag, whenever you want your presentation, you will have to. Will you be playing it, and or Sandeep will be playing it? Sandeep, I think I can do that if you want। No, no. I mean, if and whenever you need your slide, आप हमें guide करें। संदीप प्लीज आप लगा दीजिए, लगा दीजिए slide। जी। And we can have Chirag sir on the window. Just one speaker on the window so that the slides don't get covered. Yes. So please go ahead. Yes. Yeah. So you just tell Sandeep just to do the move next the slide. Just do the next slide. This is just my introduction. Yeah. Yeah. So this is what it is, and our pride of the nation, Deepa ma'am, is also there on the slide. Oh, thank you, Chirag. That's very sweet of you. Thank you. Yeah. So next, just put on the next slide. So there are different challenges that we face with the para athletes. Definitely in the inadequate dietary intake है, जैसे मैंने बोला गैस्ट्रिक एम्प्टिंग का प्रॉब्लम है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत लिमिटेड डेटा है हमारे पास, बहुत लिमिटेड रिसर्चेस। अगर आप देखेंगे रिसर्चेस फॉर स्पोर्ट्स फॉर अदर एबल्ड बॉडी एथलीट्स, देयर आर सो मेनी रिसर्चेस, but when it comes to para athletes the research is very limited। Okay, so and all the disabilities are also very different from each other। कोई cervical level पे है, कोई thoracic level पे है, कोई lower thoracic levels पे है, और सबके impacts जो है बहुत different होने वाले। तो मैंने जैसे आपको कहा कि challenges बहुत सारे हैं हमारे पास पैरा स्पोर्ट्स के लिए, बट एक अच्छी चीज ये है कि अब स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन जैसे जैसे बढ़ रहा है,
और हम लोग जैसे जैसे पढ़ रहे हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में, तो हमें समझ में आ रहा है कि कहाँ पे हमारे चैलेंजेस होंगे। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें समझ में आता है कि जैसे डाइटरी इंटेक की हम बात करते हैं कि डाइटरी इंटेक कैसे हम कैलकुलेट करें, एनर्जी इंटेक जो है उसको हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके, इसमें लाइक आई सेड हेरिस बेनेडिक्ट एक इक्वेशन है जिसको आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा आप ये देख सकते हो कि कितना मेरा क्लाइंट जो है वो फिजिकली एक्टिव रहा, पैरा स्पोर्ट्स में भी कितनी उसकी ट्रेनिंग आवर्स है। अगर मेरे क्लाइंट की ट्रेनिंग आवर्स इज 2 to 4 to 6 hours every day, then definitely this client would be needing excessive or extra calories. किस तरह का स्पोर्ट्स मेरा क्लाइंट पिकअप करता है, एंड्योरेंस स्पोर्ट्स है और ज्यादा कैलोरीज का डिमांड बढ़ जाता है। पावर स्पोर्ट्स है, जैसे दीपा मैम का जो स्पोर्ट है वो शॉर्ट पुट है या जैवलिन है, उसमें आपको एक बार फुल एनर्जी के साथ उस बॉल को थ्रो करना है या जैवलिन को थ्रो करना है। तो यहाँ पे हमें डेफिनेटली क्या चाहिए, वी डेफिनेटली रिक्वायर मोर पावर जनरेशन। यहाँ पे जब दीपा मैम की न्यूट्रिशन की बात आती है तो वहां पर हम डेफिनेटली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करते हैं। तो जितने भी हमारे ट्रेनर्स जो जिन्होंने दीपा मैम को ट्रेन किया, उनका एक फोकस था कि हम किसी भी तरह से मैम का स्ट्रेंथ बिल्डअप करते हैं। उसके साथ साथ हमें चाहिए एक प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बढ़ता है। अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग डर जाते हैं जब उनको लगता है जब उनको लगता है कि प्रोटीन एक्स्ट्रा खाना पड़ेगा, कहीं उससे किडनी पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, कहीं उससे कोई लिवर पे तो इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, वैसे ही बॉडी जो है कम काम कर रही है। तो मैं आपको ये जरूर समझाऊंगा कि जो भी आपके ऑर्गन्स काम कर रहे हैं वो ठीक काम अगर कर रहे हैं तो आपको प्रोटीन से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन हमारा एक बेसिक मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो मसल रिपेयर में, रिकवरी में हेल्प कर रहा है। हम बहुत सारे लोग हैं जो रिकवरी को नहीं सोचते। हम लोग ट्रेनिंग अच्छी कर रहे हैं, हम लोग खाना अच्छा खाने की कोशिश कर रहे हैं, बट रिकवरी की बात नहीं कर रहे। जो हमारा एक पिलर है बेसिकली रिकवरी, उसकी हम बात नहीं करते। हम स्लीप की बात नहीं करते, हम प्रोटीन्स की बात नहीं करते, हम माइक्रो न्यूट्रिशन की बात नहीं करते। तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्रो रिक्वायरमेंट आपके स्पोर्ट्स के हिसाब से बहुत डिफर करती है। जैसे मैंने कहा पावर बेस्ड स्पोर्ट्स है, जैसे कि जैवलिन है, जैसे कि शॉर्ट पुट है, उस केसेस में आपको कार्ब रिक्वायरमेंट बढ़ाने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे एथलीट्स को इसकी जरूरत नहीं पड़ती। यही अगर आपका एथलीट जो है एंड्योरेंस बेस्ड एथलीट है, जो रनिंग करता है, 1600 मीटर दौड़ता है या 5000 मीटर दौड़ता है, ऐसी इस तरह की रेसिंग में पार्ट लेता है, तो वहां पे आपको डेफिनेटली यू हैव टू लुक एट इंक्रीजिंग द कार्बोहाइड्रेट इनटेक। ओके, उसके अलावा कुछ ऐसे स्पोर्ट्स होंगे जहां पे आपको बॉडी वेट भी मैनेज करना है। ओके, जैसे हमारे केस में, दीपाम के केस में ये चीज नहीं थी, तो वहां पर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा वेट चल जाता था या कम भी होता था, वेट चल जाता था। बट जैसे बॉक्सिंग जैसे स्पोर्ट्स है या ऐसे स्पोर्ट्स जहाँ पे वेट का एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, तो वहां पे आप कार्ब लोडिंग नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा कार्ब्स डाइट में नहीं डाल सकते, बिकॉज कार्ब्स जो है वो पानी होल्ड करेंगे, जिसकी वजह से इमीडिएटली वेट बढ़ सकता है। तो आपका क्लाइंट अगर वे कर रहा है 75 kg कैटेगरी के लिए और वो एक्स्ट्रा कार्ब्स इनटेक करता है और वेट 77 आ जाता है, तो वो उस कैटेगरी में नहीं खेल पाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको दिमाग में रखना होता है। पर इसको सिंपल तरीके से हम लेते हैं। पहले हम डिवाइड करते हैं मैक्रोज वर्सेस माइक्रो न्यूट्रिशन। मैक्रो का मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। बहुत सारे लोगों को लगेगा चलो कार्ब्स खाते हैं बिकॉज हमारा स्पोर्ट्स अच्छा है, प्रोटीन के बारे में भी सोचते हैं, बट हम में से कितने लोग हैं जो फैट्स के बारे में सोचते हैं कि हमें अच्छा फैट भी खाने की जरूरत है। आप ये समझिए कि आपके जितने हार्मोन्स हैं, ओके, टेस्टोस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ये सारे जो हार्मोन आपके रिपेयर और रिकवरी में काम कर रहे हैं, इन सब को बनाने के लिए जो मॉलिक्यूल यूज होता है वो कोलेस्ट्रॉल या फैट का मॉलिक्यूल होता है। तो अपनी डाइट में कोशिश करिए कि आप फैट भी इंकॉर्पोरेट कीजिए। फैट के सोर्सेज बहुत सारे हैं। जैसे अगर हम स्पेशली एथलीट्स की बात करें तो घी आप देखते हैं, आप कोकोनट ऑयल देख रहे हैं, आजकल ऑलिव ऑयल है, चिया सीड्स हैं, सेसमे सीड्स हैं। आप बस अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो कोल्ड वाटर फिशेज हैं या फ्लैक्सीड है। तो ये सारी चीजों को देखो, कैलोरी सबने 9 ही देने। फैट से डरने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचो कि फैट से डरने की जरूरत है, मुझे फैट खाने की जरूरत नहीं, मैं फैट खाने से कोई दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फैट आपकी रिकवरी में ही हेल्प करेगा, फैट आपके रिकवरी में हेल्प करेगा, टॉक्सिसिटी बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करेगा। बट ये भी जरूर देखिए कि कितना मेरी बॉडी जो है फैट को एब्जॉर्ब कर पा रही है। ऐसा ना हो कहीं कि आपने फैट खाया तो सही पर बॉडी उनकी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाई। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ओके, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर किसी का गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिलेड है तो न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा। ज्यादा फैट खाने का मतलब डेफिनेटली क्या है कि उसका पेट खराब हो जाएगा, डायरिया ऐसी सिचुएशंस आ जाएंगी। तो उस चीज को भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी।
ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिशन की बात करते हैं, आपके वाइटामिन, आपके मिनरल्स, जैसे एक बहुत कॉमन चीज जो देखी गई पैरा स्पोर्ट्स में, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। वो तो आजकल हम सब के केस में देख रहे हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, बट पैरा स्पोर्ट्स में थोड़ी सी ज्यादा देखी गई। ऑलरेडी देखा जाता है कि आई थिंक समबडीज माइक इज ओपन। एक ये देखा जाता है कि विटामिन डी जो है आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। स्पेशली जो लोग व्हील चेयर पर हैं, वहां देखा गया कि जो मसल्स हैं वो एट्रोफी के लिए जा रही हैं, जो बोन्स हैं वो एट्रोफी कर रही हैं, वो वीक हैं, वहां पे विटामिन डी का जो रोल है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप किसी भी एथलीट के साथ काम करते हो, तो सबसे पहली चीज जो है एक ब्लड टेस्ट कराओ, उसमें चेक करो विटामिन डी के लेवल, विटामिन B12 का लेवल क्या है। अगर कम है तो उसमें हमें सप्लीमेंटेशन की नीड पड़ सकती है। सो विल लुक एट दैट ऑल्सो लेटर। सो माइक्रो न्यूट्रिशन पे काम करिए। इसमें आप जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज का आपको ध्यान रखना है, उसमें यही है कि आप जितने कलर्स, पहले हम फूड की बात करते हैं, जो फूड पे नहीं हो पाएगा, फिर हम बात करेंगे सप्लीमेंटेशन की। जितने कलर्स आप अपनी प्लेट में लेकर आ सकते हैं, चाहे वो फ्रूट्स को लेकर हो, चाहे वो वेजिटेबल्स को लेकर हो, जितने कलर्स आप अपनी प्लेट में लेकर आएंगे उतना अच्छा है। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप फोटो खींचे, जितना भी जो भी आप खाना खा रहे हैं, व्हाटएवर फूड यू आर ईटिंग, जस्ट क्लिक द पिक्चर्स, ओके, एंड एट द एंड ऑफ द डे जस्ट स्वाइप द पिक्चर्स एंड सी कितने कलर्स यू कैन फाइंड इन योर प्लेट। अगर आप 2 से 3 कलर्स ही देख पाते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो डाइट है वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स में मिस कर। अगर आप 5 देख पा रहे हैं कलर्स, फॉर एग्जांपल आपने खीरा डाल दिया तो ग्रीन कलर आ गया, ठीक है, टमाटो डाल दिया तो रेड कलर आ गया, और इस तरह के बेल पेपर्स डाल दिए तो येलो कलर आ गया, तो आपने 5 कलर्स देख लिए, तो इसका मतलब डेफिनेटली आप अच्छा कर रहे हैं, बट आप और अच्छा कर सकते हैं। ओके, 5 to 8 colors or something that you have to put in your diet, चाहे वो वेजिटेबल्स की फॉर्म में था, चाहे वो फ्रूट्स की फॉर्म में था, आपको डालना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बोला फ्रूट खाना है तो आप 1 किलो वाटरमेलन पूरा खा लीजिए। आप 2 या 3 स्लाइसेस खाएंगे, ऑरेंज के 2 या 3 स्लाइसेस लेंगे, गमीज के ले सकते हैं, आप पियर्स के ले सकते हैं, आप एप्पल का ले सकते हैं, आप मैंगो के 2 स्लाइस ले सकते हैं। इन सब चीजों के आप 2-2 स्लाइस लीजिए, 5 से 6 कलर्स लीजिए अपने फ्रूट्स के साथ। That's gonna help you with your micronutrition. Okay? तो मेरा सिर्फ यही आपसे एक वो है कि माइक्रो न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो आजकल मल्टीविटामिन लोग खाना शुरू कर देते हैं। मल्टीविटामिन की अभी जरूरत नहीं है, पहले आपको जरूरत है अपने फूड से जितना न्यूट्रिशन आप पूरा कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कुछ एक चीजें मैंने आपको बताया कि विटामिन डी है, जैसे वो यूजुअली कम होता है, वो ब्लड टेस्ट से भी आपको पता चल जाएगा। अगर आप वेजिटेरियन हो तो विटामिन B12 जो है वो भी कम रहता है, तो उसके लिए भी सप्लीमेंट्स आते हैं, उसके लिए भी डॉक्टर से आप मिल सकते हैं, अपने अपने डाइटिशियन से मिल सकते हैं। सो वो भी आपको विटामिन B12 के लिए कुछ ना कुछ रिकमेंड कर सकता है। माइक्रो न्यूट्रिशन के बिना एक अच्छा एथलीट नहीं बन सकते, ठीक है। आपको अच्छे फैट्स की जरूरत है, आपको अच्छी रिकवरी की जरूरत है। जैसे हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिशन फैट्स में, माइक्रो में हमने बात की फैट्स की, फैट्स में हम बात करते हैं जैसे फिश ऑयल की। एक अच्छा फिश ऑयल वो होगा जिसमें इकोसा पेंटानोइक एसिड बोलते हैं, EPA बोलते हैं। EPA जो है EPA जो है, EPA इज वेरी गुड फॉर योर मसल रिकवरी, मसल रिपेयर, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, रिकवरी के लिए, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। So athletes like you or people who are training athletes, you know, it is very tough for athletes to recover because already they are training so much. 6-6 घंटा 8-8 घंटा दिन में ट्रेनिंग करते हैं, उनके लिए और मुश्किल हो जाता है रिकवरी। इस तरह की जो चीजें ऐड आप करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको रिकवरी देने में हेल्प करेगा। Chirag, can I take a minute here? Sure, ma'am. I would definitely want to welcome Intan and Natalia. Intan was our LO to Indian team when we had gone for Asian Para Games 2018. So he has joined all the way from Indonesia, and we miss you, Intan. We really remember your contribution to the Paralympic team which had come from India. Thank you. And Natalia, Sri Lanka also is a South Asian country, and we were very, very close to them when we were there. So thank you for joining, both of you. We also have Muhammin Nool is also here. He was the LO to Thai team. So
It's so amazing to see members of the Asian Para Games volunteer team from 2018 joining us today. I think our sessions are beginning to get popular, and we are very fortunate to have them in our meeting room. Thank you so much. Yes, Chirag, please go ahead. Thank you so much, all the esteemed guests, for joining in. I'll try and do an English and Hindi mix so that we all get an idea of what I'm trying to say. So yeah, so that's what I'm trying to say, that please talk about the micronutrition also. Speak to your dietitians, speak to your nutritionist about the micronutrition as well. Don't just look at the macros. Don't just look at doodh, ghee, yes, milk or cottage cheese. That's one of the things that as an athlete, we see a lot of people missing on this. Yes, these all things are important, but now is the time where we are looking at smart work. Okay, we are looking at smart work. Hard work is definitely a part of the sports fraternity, that comes without saying. But what we are also looking at smart work. We are looking at accelerating time. As an athlete, आपका जो aim है, your aim is just to work on that millisecond, or just to get to that distance of millimeters or maybe centimeters that will give you that medal that you have worked out. Paralympians or Olympians, they worked 4 years just for that millisecond to go down. So anything that will work on that millisecond, I think adding that to their routine definitely will help. Okay, so next thing definitely I'm looking at is the gut health. Okay, आपका स्टमक में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे हैं. अब होता क्या है, द काइंड ऑफ फूड वी आर ईटिंग, द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वी आर लिविंग इन, ये जो फ्लोरा है, गट फ्लोरा जिसे हम बोलते हैं, that gets destroyed. या अगर आपने कभी एंटीबायोटिक का डोज लिया, so this definitely gets destroyed, and you feel irritable, you feel that you're catching the flu faster, and the digestion also hampers. So all these things happen because of lack of something called the gut bacteria or the gut flora, that usually can come out with a small dose of probiotic. अब प्रोबायोटिक्स क्या हुआ? प्रोबायोटिक्स वो बैक्टीरिया है जिसके अंदर जो एक मीडियम में ग्रो कर सकते हैं. जैसे आपने आजकल याकुल्ट देखा होगा. पहले जमाने में हमारे पेरेंट्स बोलते थे दही, ओके, कर्ड, योगर्ट, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, बट एट द रूम टेम्परेचर. ओके, yogurt to be eaten at the room temperature, that's the best way to add gut bacteria into your system. Okay, don't put it in the freezer, don't freeze it, don't put it in the fridge, don't keep it for long hours. That's the best way you can add up to your gut bacteria. If you think you can't do that, or taste एक problem है, मैं नहीं खा सकता, ऐसा कुछ problem है, so then what you can look at is, then you can look at products like Yakult, which is giving you 6.5 billion bacteria in one serving. One serving is more than sufficient, Yakult. One serving is more than sufficient to replenish your bacteria every day. Okay, so just make sure that is added to your athletes nutrition plan. Also look at antioxidants. Why antioxidants are responsible? So antioxidant basically क्या है? Free radicals जो है आपकी body में जमा होते हैं, especially when you exercise so much. There are so many. Behind slide, standing behind. Yeah, just keep it there, don't change. So there are so many reactions that are happening in the body, and कुछ ना कुछ particles जो है वो body में रह जाता है, जिसे हम बोलते हैं free radical. Okay, those free radicals can damage your kidneys, your liver, your skin. उसको ना हो इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए होता है antioxidants. Okay, अब antioxidants vitamins की form में आपको मिलते हैं. Okay, जैसे हमने कहा विटामिन ए, विटामिन सी, इस फॉर्म में आपको मिलता है. न्यूट्रिशन जो है, ग्रीन टी जैसे हम बात करते हैं, इसकी फॉर्म में आपको मिलता है. सबसे स्ट्रॉन्ग जो एंटीऑक्सीडेंट है, यू नो व्हाट इज दैट? दैट इज योर स्लीप. ओके, दैट्स गोना नेगेट द इफेक्ट ऑफ एनीथिंग दैट्स हैपनिंग इन योर बॉडी. इवन इन द टाइम्स ऑफ कोरोना, द बेस्ट एडवाइस व्हाट द डॉक्टर्स आर गिविंग इज दैट यू शुड लुक एट योर स्लीप. 8 to 9 hours of sleep, 7 to 9 hours of sleep is important. Don't miss out on sleep if you want your immunity to be normal. Don't run for higher immunity or lower immunity. आपका immunity जो है, that has to be balanced. You don't need higher immunity, you don't need lower immunity.
ज्यादा हो जाता है इम्यूनिटी तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के चांसेस बढ़ जाते हैं, कम होता है तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. So just don't get carried away by words like increase your immunity. You don't want to increase your immunity. You want adequate immunity. आपको उतना ही चाहिए जितना आपको जरूरत है, ना उससे ज्यादा की जरूरत है ना उससे कम की जरूरत है. तो सबसे पहली चीज जो आप करेंगे अपने एथलीट के साथ, उससे एक क्वेश्चन पूछेंगे, सर हाउ इज, और मैम हाउ इज योर स्लीप. इफ द पर्सन सेज सर बहुत डिस्टर्ब रहती है रात को स्लीप, आंख तो बंद होती है, आई फील दैट आई एम स्लीपिंग बट इट्स वेरी डिस्टर्ब, आई फील दैट somebody is coming into the room, somebody is going out of the room, that something is there. On my resting heart rate is when you get up in the morning, the first thing that you do when you get up normally, not with the alarm clock, when you get up normally and you check your resting heart rate, okay, that's your heart, that's called a resting heart rate. And if the resting heart rate goes up, usually athletes know their resting heart rate, all of them usually calculate. तो अगर ये दोनों चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब आपका क्लाइंट जो है वो ओवर ट्रेनिंग की तरफ जा रहा है. These are the signs and symptoms of something called overtraining. तो वहां पर आपको एक ब्रेक लेने की जरूरत है. डेफिनेटली न्यूट्रिशन प्लान हेल्प करेगा, बट न्यूट्रिशन एंड रिकवरी also require rest. Okay, so make sure that you add a lot of sleep at that point of time. You add a lot of recovery to that time. Otherwise, what's going to happen? This person will end up going into a stage of rhabdomyolysis, which is a very, very, very far stage. Okay, it's not that's going to happen in 1 or 2 sessions, but can happen, had happened in the past. So इसलिए बहुत जरूरी है आपको अपने ट्रेनिंग वॉल्यूम्स को, अपने न्यूट्रिशन को मैनेज करना, एंटीऑक्सीडेंट्स को लेके जाना, विटामिन सी जो कि सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है, रस वाले फ्रूट्स में आपको मिलता है, so that you can look at adding to your routine. Make sure 1 lemon or maybe orange or the Limcy tablets, 1000 milligrams, that you can take every day. So that's something that you can look at in the micronutrition. Calcium, like I said, a lot of us are deficient in calcium. आप बहुत ज़्यादा दूध नहीं पी सकते, milk and milk products नहीं consume कर सकते, vegan है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके कि आपका calcium कम है. You have to look at the calcium supplementation. Okay, so again, first of all, we all have to focus on the food. Whatever is left has to come from the supplementation. We'll cover the supplementation towards the end, but we'll talk about the nutrition part first. Yeah. So these all things, the calories, the energy, these all things are really, really important for the athlete. अगर उसको adequate energy नहीं मिलता, definitely उसका performance गिरेगा, athlete का performance गिरेगा, because he's burning more calories than he's eating. Body weight नीचे जा रहा है, performance नीचे जा रहा है, and that's where your problem starts. You are here to help that athlete to grow, but what's happening is the athlete's performance is definitely going down. So as a nutritionist, as a sports coach, or as a strength and conditioning specialist for these people, you have to sit down and see where the problem is. Okay, so macronutrition, look at the carbohydrates. Okay, based on the sports. If it's a power-based sports, the carbohydrate needs to just be balanced. Okay, if it's an endurance-based sports, there is an amputee who, let's say, runs a 15 or 1600 meters, or maybe a 5-kilometer run, or maybe a half marathon, which is 21 kilometers, or maybe a full marathon, which is 42 kilometers. So in that situation, we have to look at carbohydrate meals, pre-contest, carbohydrate loading. Now, in this also, there will be gender differences between male and female. Males definitely will be absorbing a lot of more carbohydrate, whereas females will definitely have more challenge doing that. Okay? So that you have to see. So first things first, like I said, first of all, you just have to see what kind of injury or what kind of disability my client has. If it's related to, let's say, amputation of the hand, then rest of the functions will be the same. You don't require anything special. But let's say it's a spinal cord injury, maybe at the T4, T5, T6 level, thoracic 4, thoracic 5, thoracic 6 levels. So that case, you have to look at that the client will be on wheelchair. You have to look at the fluid loss also in this situation. You have to look at limited carbohydrate intake, the kind of sports that person has. Maybe this person is playing basketball. So it requires a lot of power. It requires a lot of endurance. This is a sport which is on wheelchair, but also you have like a shot put, or you have a javelin throw, something like this, which requires a lot of power.
which works into a different energy system. Although both of the sports are into the same category, but both of them work on a different line. So look at the macronutrients, carbohydrates, proteins, very important. Don't shy away from eating proteins. अगर supplement अगर normal नहीं हो पा रहा है और supplement भी लेना है, so there is no problem. The supplement is made from milk. Okay? If you have made paneer in the house, cottage cheese in the house, if you have made cottage cheese in the house ever, जो पानी बच जाता है वो वे प्रोटीन होता है. उसमें क्वांटिटी प्रोटीन की बहुत ज्यादा नहीं होती, इसीलिए आप अगर वो प्रोटीन लेते भी हैं तो बहुत आपको फायदा नहीं मिलता कि आपको 1 लीटर दूध में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है वे की फॉर्म में. वही जो ये कंपनीज आपको एक्सट्रैक्ट करके देती हैं वो आपको ज्यादा प्रोटीन देती है. ओके, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ये वे प्रोटीन देखें. ये नाडा वाडा इन सब अथॉरिटी से अप्रूव्ड है. जितने भी हमारे एथलीट्स हैं, दे ऑल गो and buy these products. Just buy a genuine product so that your protein requirements can be fulfilled. Again, I will mention this. First thing always will be taking the protein from food. You can add eggs, you can add chicken, you can add dal, you can add pulses, you can add legumes, you can have lentils, dal, chana, chole, paneer, rajma. ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो प्रोटीन के लिए अपनी एथलीट्स की डाइट में. अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि प्रोटीन पूरा नहीं हो पा रहा, ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं कि एक नॉर्मल आदमी जो एक्सरसाइज नहीं करता उसको प्रोटीन चाहिए 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट. ओके, 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, बट जैसे जैसे वो एक्सरसाइज करने लगता है रिक्वायरमेंट बढ़ती. हम पैरा स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो वहां पे ये देखना है कि अगर एबल बॉडी एथलीट है, अगर सिर्फ एक एम्पुटेशन है हाथ का, तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट सेम रहती है. बट अगर वही सेम एथलीट व्हीलचेयर पे है तो वहां पर आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी. ओके, अगर उसका सिर्फ अपर बॉडी ही काम कर रहा है तो आपको बहुत ज्यादा प्रोटीन इंटेक की जरूरत है. मे बी यू लुक एट 1 to 1.5 grams पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट बिकॉज यू आर ओनली हैविंग द अपर बॉडी दैट इज मूविंग. सो ये हर केस टू केस वेरी करेगा, हर इंसान के साथ ये बदलेगा. तो पहले कोशिश करिए कि मैं कितने अंडे दे सकता हूँ, मैं कितना पनीर दे सकता हूँ, मैं कितनी दालें दे सकता हूँ, मैं कितना चना दे सकता हूँ, इससे मैं कितना प्रोटीन पूरा कर पा रहा हूँ. अगर उसके बाद भी लगता है कि कुछ बच गया है या मुझे एक फास्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन चाहिए, देन आई एम लुकिंग एट अ वे प्रोटीन सप्लीमेंट. जैसे कि एकदम ट्रेनिंग के बाद पनीर नहीं खाया जाएगा, बहुत भारी होगा. दाल स्प्राउट्स नहीं खाए जाएंगे, बहुत स्लो डाइजेशन होता है. तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम एक वे प्रोटीन के बारे में सोचते हैं. ओके, देन ऑल्सो लुक एट फैट्स. फैट्स लाइक घी, कोकोनट ऑयल, आजकल इन पे बहुत बात हो रही है, रिकवरी के लिए बहुत अच्छे हैं. ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल में कुकिंग मत शुरू कीजिए, वो बहुत हीट स्टेबल नहीं होता. अगर आपको पीना है तो ऑलिव ऑयल को चम्मच में डालिए और ऐसे ही पी लीजिए. डू नॉट कुक इन ऑलिव ऑयल. ऑलिव ऑयल इज नॉट मेड फॉर कुकिंग. ऑलिव ऑयल इज ओनली मेड फॉर टेकिंग इट इन द रॉ फॉर्म. ये आप ऐड कर सकते हो. चिया सीड्स आप ऐड कर सकते हो अपनी डाइट में. You can also add fish, cold water fish, not the regular fish. अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप फिश की रोज देख सकते हो, सैमन खा सकते हैं, ट्यूना खा सकते हैं. ये वाली जो फिशेज है इसमें अच्छे तरह का फैट होता है जो आपकी ब्रेन की रिकवरी में हेल्प करता है, आपकी बॉडी की रिकवरी में हेल्प करता है. दैट यू कैन लुक एट. ओके, अगर ये नहीं है तो यू कैन लुक एट फिश ऑयल सप्लीमेंट. Whenever you go and buy a fish oil supplement, उसमें देखिएगा EPA और DHA का कॉन्सेंट्रेशन कितना है. जितना ज्यादा EPA DHA होगा उतना आपके लिए अच्छा है. ओके, सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन लुक एट. विटामिन डी, विटामिन डी का टेस्ट आप कराइए रेगुलर हर 3 महीने में. उसके लिए भी आपको 60,000 IU का एक नॉर्मल बॉटल आता है, शीशी आता है दवाई का, जो आप एक पी सकते हैं once a week. दैट विल हेल्प यू. ये देखा गया है कि लो विटामिन डी लेवल्स जो होते हैं वो परफॉर्मेंस पे डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं, आपके टेंशन पर इंपैक्ट करते हैं, ओवरऑल आपके परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट करते हैं. तो एक छोटी सी, लाइक आई सेड, we are not going for the perfect diet. We are just working on the client so that that person gets a difference of 1%. 1 भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 0.1% into their performance. Even that 0.1% performance increase can lead to excellent performance for people. Okay, look at, like I said, this is about the macro. Then look at micronutrition. Then you look at even the hydration. पानी, पानी के बारे में कोई बात नहीं करता. Nobody tells you how much water you have to drink. किस तरह पानी पीना है, गेटोरेड पीना है, इलेक्ट्रॉल पीना है या कोई और ड्रिंक पीना है.
इस सब के बारे में कोई बात नहीं करता. So look at hydration also. How much your client is losing weight. Okay, अगर आपका क्लाइंट बहुत गर्मी है, जैसे अभी बहुत गर्मी है, आप एक्सरसाइज करें, और स्पेशली व्हीलचेयर एथलीट्स के केसेस में ये और ज्यादा बढ़ जाता है, तो वहां पे आप एक टॉवल उनको बोल सकते हैं रख के अपने साथ कोल्ड वाटर का हेड एंड नेक को कोल्ड करने के लिए, ताकि बॉडी टेम्परेचर जो है वो नीचे जाए. ठीक है. इसके साथ साथ पानी का अपने पास हमेशा अरेंजमेंट रखिए. वाटर, यू हैव टू टेक वाटर. You can't just stay away from water. You have to drink because it is the only medium जिसमें सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं वो इसी के अंदर होने वाले हैं. तो अब कितना पानी पीना चाहिए? 10 लीटर नहीं पीना. टोटल जो रिक्वायरमेंट आती है वो लगभग 4.5 लीटर के आसपास आती है. मेल्स में 3.7 लीटर्स के आसपास आती है. फीमेल्स में इसमें से कुछ पानी आपको सब्जियों से, फल से, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड इवन ग्रीन टी और कॉफी और एनी अदर ड्रिंक दैट यू टेक, उससे मिल जाता है. Okay, the rest you have to look at, let's say 2.5 liters for males, not on a normal day, not when you are exercising, not when you are training, तब और बढ़ जाएगा. Okay, अगर आप क्लाइंट का बॉडी वेट मेजर कर सकते हैं, उसमें ये देखिए कि उसने कितना वजन लूज किया. जितना वजन लूज किया है, फॉर एग्जांपल द पर्सन came for training, he was weighing 90 kilos, when he went out he was weighing 89 kilos. तो 1 किलो जो कम हुआ वो फैट या कोई और चीज नहीं थी, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ इट जो है वो पानी है. अब ऐसा नहीं कर सकता कि मैं 1 लीटर पानी एक साथ पी लूं और वो सारा एब्जॉर्ब हो जाए. वो एब्जॉर्ब नहीं होगा. आप ज्यादा यूरिनेशन के लिए जाओगे, आप ज्यादा वॉशरूम यूज करोगे और आपका एब्जॉर्प्शन कम होगा. आप ये कोशिश करिए कि 1 लीटर पानी अगले 24 घंटे में बढ़ा दीजिए. 2.5 की जगह आपको 3.5 लीटर पानी पीना है. अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे इन्वायरमेंट में एक्सरसाइज कर रहा हूँ जहाँ बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, जहाँ पे मैं बहुत ज्यादा पानी यूज कर रहा हूँ, सॉल्ट्स जा रहे हैं, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉल देख सकते हैं आप. ओके, यहाँ पर आप गेटोरेड जैसी ड्रिंक्स को देख सकते हैं, जो बेसिकली आपके जो बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स, जो बेसिकली वापस आपके पानी के लेवल को बेटर तरीके से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है. ये नॉर्मल पानी से बेटर एब्जॉर्ब होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इसको पानी से रिप्लेस करना है. ओके, आई डोंट हैव टू रिप्लेस इट विद वाटर. वाटर इज द बेस्ट. ये सिर्फ उन केसेस में जाता है जहां पे आपकी एक्सरसाइज 90 मिनट्स के ऊपर जाती है. नॉर्मल लोगों में, पैरा एथलीट्स की बात करेंगे तो वहां पे 60 मिनट्स हो जाता है, बिकॉज अगर व्हीलचेयर पे है तो स्वेटिंग और ज्यादा हो रही है, या ऐसी किसी सिचुएशन में है तो जो थर्मल रिसेप्टर्स है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे. तो आप वहां पर देखिए कि 60 मिनट्स के ऊपर अगर मेरा सेशन जा रहा है एंड आई एम स्वेटिंग प्रोफ्यूजली, तब मैं अपने पानी को रिप्लेस करना चाहूंगा इलेक्ट्रॉल से. ओके, जिसे हम बोलते हैं दालचीनी का पानी बोलते हैं, या फिर आप गेटोरेड देख सकते हैं. ओके, इन सारी चीजों को आप यूज करके अपना जो वाटर लॉस हुआ है उसको भी वापस पूरा कर पाएंगे, और जो न्यूट्रिशन, जो सोडियम पोटेशियम लॉस हो रहा है उसको भी वापस यूज कर पाएंगे. ओके, आइसोटोनिक ड्रिंक्स की जब हम बात करते हैं तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट होते हैं. तो अपनी डाइट में अपने क्लाइंट्स के लिए जब आप सोच रहे हैं तो इसके बारे में जरूर सोचिए कि हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. 2% भी अगर वाटर लॉस बॉडी से होता है ना तो आपका परफॉर्मेंस गिरने लग जाता है. 8% पे आप एडिक्वेटली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. 20% वाटर लॉस पे सिवियर डिहाइड्रेशन हो जाएगी एंड द पर्सन कैन आल्सो रीच टू कोमा और कैन डाई आल्सो. तो इसीलिए एज द न्यूट्रिशन कोच मैक्रो माइक्रो सब इंपॉर्टेंट है, बट वाटर को मत छोड़िए. पानी के बारे में जरूर बात कीजिए. क्लाइंट से पूछिए कि कैसे आप पानी को पूरा कर पाएंगे. इस तरह की जैसे बॉटल आप अपनी टेबल पे रख सकते हैं कि 1 लीटर का बॉटल है, मुझे इसे 3 बार भरना. ग्लासेस किसी को याद नहीं रहते. अपनी बॉटल अपने पास रखो. अगर एथलीट हो तो और बड़ा वो देखो कि मेरे को 4 लीटर का पानी पीना, 2 लीटर की बॉटल रखी जो 4 बार मेरे को या 2 बार मेरे को खत्म करनी. गुड टाइम टू हैव वाटर. ओके, I'm not taking questions now, but I'll do it at the end. So this is what you have to look at. Now we look at sports wise. सारे sports तो cover करना इस टाइम पे मुश्किल है, but कुछ एक sports मैं कोशिश करता हूँ cover करने की जिसमें हमारी भी expertise है. जैसे कि power based sports है, shot put है, javelin है. दीपा मैम के साथ भी हमने बहुत काम किया है इस चीज के ऊपर. And we were fortunate enough कि मैम के साथ हमें ट्रेनिंग करने का मौका मिला. तो इसमें जैसे जो मैम का स्पोर्ट है, whether it's shot put or whether it's javelin, इसमें हमें क्या चाहिए होता है, इसमें हमें पावर जनरेशन चाहिए. इसमें एक बार बॉल फेंकना है बट इतना दूर फेंकना है कि आप ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकें. अब इसमें जो एनर्जी सिस्टम यूज होता है उसको बोलते हैं फॉस्फोजन सिस्टम या क्रेटिन फॉस्फेट. इसमें जो मॉलिक्यूल यूज होता है एनर्जी देने के लिए
दैट इज क्रेटीन। आपने अगर किडनी फंक्शन टेस्ट कभी कराया होगा तो उसमें भी आता है क्रेटिनाइन। ओके, तो ये क्रेटिन बेसिकली क्या करता है, आपको एनर्जी देने के लिए हेल्प करता है, आपको एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। अब अच्छी बात ये है और बुरी बात, दो चीजें हैं इसमें। अच्छी बात ये है कि आपकी बॉडी, चिराग सर एक सेकेंड, आई एम सीइंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग इन द चैट बॉक्स। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप अपना ईमेल आईडी अपने क्वेश्चन के साथ जरूर लिख दें। ये जो चैट का कंप्लीट पीडीएफ है ये हम सेशन के बाद चिराग सेठी सर को भी भेजेंगे, और वो फिर स्पेसिफिक क्वेश्चंस आज जो इस सेशन से निकले हैं हम आपकी ईमेल पे उनको वापस आपको भेज देंगे। सो प्लीज अपनी ईमेल के साथ अपना क्वेश्चन डालिए। बाय द वे अगर हम इसमें नहीं ले पाते हैं तो वी विल बी गेटिंग बैक टू यू विथ योर आंसर ऑन द ईमेल। थैंक यू, थैंक यू जी। सो जैसे मैंने कहा, पावर स्पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो पावर स्पोर्ट्स में क्रिएटिन का बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छी बात यह है कि आपकी बॉडी 3 अमीनो एसिड्स के साथ मिलके, ओके, ग्लाइसिन, आर्जिनिन और मिथ्योनिन के साथ मिलके ये बना सकती है, लिवर और किडनी के फंक्शन के साथ ये बना सकती है। बट लिमिटेशन होती है उसकी कि उसका एक लिमिट, एक स्टोरेज है आपके मसल्स में, वेरी लिमिटेड, दैट्स देयर इन योर मसल. So what happens is when you go for these power sports, you require the muscles to recover faster. The ATP needs to be resynthesized faster. तो इस केस में हमें क्रिएटिन की जरूरत पड़ती है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल जो चीजें हैं, उससे हमें नहीं मिल पाता। ओके, हमारे पास नेचुरल सोर्सेज नहीं है। नेचुरल सोर्सेज में अगर आप क्रिएटिन देखते हैं तो सिर्फ आपको क्रिएटिन मिलता है रेड मीट में। रेड मीट मतलब बड़े जानवर का मांस, जैसे कि गोट हो गया, जैसे कि बीफ हो गया, बफ हो गया, इस तरह का जो जानवर का मीट होता है उसमें आपको क्रिएटिन मिलता है। अदरवाइज आपको जो मिलता है दैट इज अ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट या क्रिएटिन एनहाइड्रस की फॉर्म में, सप्लीमेंट की फॉर्म में मिलता है। इट्स एन एब्सोल्युटली सेफ सप्लीमेंट। वाडा नाडा हर जगह से अप्रूव्ड है, आप अपने एथलीट्स को ये दे सकते हो। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इमीडिएटली देने के बाद आपको समझ में आएगा कि परफॉर्मेंस जो है वो इमीडिएटली बेटर हो रहा है। ओके, इसमें बहुत सारा रिसर्च वर्क किया गया। अगर आप सिर्फ डालोगे क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन गूगल के बॉक्स में तो आपको इतने सारे रिसर्च आर्टिकल्स मिलेंगे क्रिएटिन के ऊपर, जिसने ये प्रूव किया है कि स्ट्रेंथ या पावर बेस्ड वर्कआउट, स्ट्रेंथ पावर बेस्ड जैसे मैंने कहा, शॉर्ट पुट है, जैवलिन थ्रो है, आपकी वेट लिफ्टिंग है, ओलंपिक लिफ्टिंग है, इस तरह के जितने भी स्पोर्ट्स हैं जहां पर आपको शॉर्ट बाउट ऑफ एनर्जी चाहिए, इवन अगर आप बात कर रहे हो स्प्रिंट की, उसमें भी आपको इसी तरह की एनर्जी की जरूरत है, तो वहां पर क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन डेफिनेटली हेल्प करता है। Okay, so if you are looking at a power based sports, if you are looking at a strength based sport, please look at this as well. Okay, also along with this you can look at a whey protein. Like I said, आपको लगता है कि अगर मेरा प्रोटीन रिक्वायरमेंट और मेरा अमीनो एसिड जो प्रोफाइल है वो नॉर्मली पूरा नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एक अच्छे वे प्रोटीन की जरूरत है। मैंने पहले भी और मैम के साथ भी कई बार डिस्कशन हुआ है कि आपको एक अच्छा प्रोटीन चाहिए, चाहे वो इंडियन है चाहे वो इम्पोर्टेड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ एक फूड का रिप्लेसमेंट हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी कैलोरीज भी ज्यादा ना बढ़े और हमारा प्रोटीन इंटेक भी जो है वो भी बढ़ जाए। तो अगर आप वेजिटेरियन है या आप लैक्टो वेजिटेरियन है या वो वेजिटेरियन है, उसके साथ आपको कितना चाहिए वो आपका डाइटिशियन आपको बता पाएगा। मैं जर्नलाइज गाइडलाइन नहीं देना चाहता यहाँ पे, ताकि मिस इंटरप्रिटेशन ना हो जाए इसका। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने डाइटिशियन से, न्यूट्रिशनिस्ट से बात कीजिए, या अपनी, जैसे मैम ने कहा कि अपना ईमेल आईडी छोड़ दीजिए, जितना हो सकेगा आई ट्राई एंड रिप्लाई टू एवरीवन। ओके, इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा फिश ऑयल कैप्सूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोल्ड वाटर फिश जैसे दिल्ली जैसे शहरों में, मुंबई में, ये जगहों में मिलना मुश्किल होता है और एक्सपेंसिव भी रहता है, तो वहां पर आप एक अच्छा फिश ऑयल सप्लीमेंट देख सकते हैं। ओके, जिसमें एक अच्छी अमाउंट में ईपीए एंड डीएचए का वैल्यू होना चाहिए। ईपीए डीएचए बस कहीं पर लिख लीजिए अगर आपको मिले तो, ईपीए डीएचए का वैल्यू होना चाहिए, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके रिकवरी के लिए, आपके ब्रेन फंक्शन के लिए। जैसे जैसे आपका एज बढ़ रहा है, आपके न्यूरॉन्स जो ब्रेन के वो डीजनरेट करते हैं, उनको वापस रीजनरेट करने के लिए इसकी जरूरत है। अब आपने बॉर्नवीटा का अगर ऐड देखा हो तो बॉर्नवीटा में भी यही बोलता है कि इसमें डीएचए है, सो दैट्स रियली गुड फॉर योर ब्रेन फंक्शन। Okay, so that's something that you can use. Okay, next, one of the, I would say,
controversial thing in this would be BCAAs. Okay, that is a personal choice. If you really want that BCAA needs to be added to your athlete stack, it's your personal choice. Otherwise, there are certain benefits. Some studies have proven it, some have disregarded it. तो ये आपका अपना पर्सनल चॉइस है. जैसे हमारे केस में मुझे इससे काफी बेनिफिट मिला अपने एथलीट्स के साथ. ओके, रिसर्च बहुत ज्यादा इसमें पॉजिटिव नहीं है, बट दिस इज समथिंग दैट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस वर्किंग विद सो मेनी एथलीट्स. आई हैव रियलाइज्ड दैट दिस इज समथिंग दैट्स रियली that has really worked for them. ओके, जब हम बात करते हैं एंड्योरेंस बेस्ड स्पोर्ट्स की, एंड्योरेंस मतलब लंबे समय तक चलने वाला, रनिंग करनी है, मैराथन दौड़नी है या ऐसी कोई चीज करनी है, तो वहां पर हम क्या देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं ग्लूटामाइन जैसा एक सप्लीमेंट बूस्ट वर्कआउट आपने लिया जो आपको हेल्प करेगा इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए. विटामिन सी आप ऐड कर सकते हो, एक अच्छा प्रोटीन आप ऐड कर सकते हो जो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाने में हेल्प करता है. ओके, इसके अलावा आप अगर एथलीट हैं और एथलीट का ब्लड टेस्ट जब आप कराते हैं मेल एथलीट का, तो वहां देखते हैं टेस्टोस्टेरोन वैल्यूज कम है, तो वहां पे हम एक टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग सप्लीमेंट दे सकते हैं. पर ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा, वाडा की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या ये सारे कंपाउंड्स जो सप्लीमेंट में है क्या वो अप्रूव्ड है. अगर वो अप्रूव्ड है और आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं, then only give these supplements to your clients or your athletes. Otherwise आपकी एक गलती उनके लिए बहुत भारी पड़ सकती है. Okay, so please read about it before you give anything. Okay, even medications जो चल रही होती है उसके बारे में भी पढ़ो कि कहीं किसी के साथ कोई चीज रिएक्ट तो नहीं करती. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. If you have taken a pre-workout or if you have taken a supplement called beta-alanine. Beta-alanine से क्या होता है, आपको थोड़ा सा इचिंग होता है. अगर बीटा एलानिन आप कंज्यूम करते हैं, थोड़ा सा इचिंग होता है, बहुत सारे लोगों को लगता है एनर्जी रिलीज हो रही है, बट दैट्स द साइड इफेक्ट ऑफ बीटा एलानिन. इसके साथ साथ इसमें मिथाइल हेक्सामीन भी कई लोग डाल देते हैं. मिथाइल हेक्सामीन आपकी अलर्टनेस के लिए होता है. तो मिथाइल हेक्सामीन जो है वो एक अच्छा कंपाउंड एथलीट्स के लिए नहीं माना जाता कंपेयर टू बीटा एलानिन. अब आपने ध्यान नहीं दिया और मिथाइल हेक्सामीन चला गया, ऐसा कोई और कंपाउंड चला गया जिसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी एथलीट के लिए, दैट एथलीट विल फेस दिस ऑल हिज लाइफ. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जहां पे आप थोड़ा सा भी अनश्योर हो वो चीज अपने क्लाइंट को मत दो. वहां पे आप थोड़ा सा पीछे हटिए, उनको बोलिए सर लेट मी जस्ट वर्क ऑन दिस. देयर इज नो हार्म आस्किंग देम टू मोर टाइम टू रीड अबाउट द थिंग. ओके, बहुत सारे एथलीट्स हमारे पास आते हैं जो बहुत सारी प्रोडक्ट्स देखते हैं ऑनलाइन, बोलते हैं सर ये क्या हम ले लें, ये वाला प्रोडक्ट क्या हम कंज्यूम कर लें, क्या ये प्रोडक्ट मेरे लिए काम करेगा. मैं आपको फिर वही बात समझाऊंगा कि हर चीज हर किसी के लिए काम नहीं करती. आपको बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, कीटो डाइट्स की बात करेंगे लोग, बहुत सारी चीजों की बात करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाटएवर सूट्स योर क्लाइंट. अगर हाई फैट डाइट खाने के बाद किसी गॉल ब्लैडर नहीं है, उसको पेट में दर्द हो जाता है या उसका गॉल ब्लैडर ठीक से काम नहीं कर रहा है या स्टोन बन जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए. Okay, so just have to be very careful when you talk about athletes, especially para athletes. In para athletes में challenges बहुत अलग है, but I'm saying it's a very 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 good area to work. I have worked and it's very challenging. मुझे लगता है हर किसी न्यूट्रिशनिस्ट को, हर किसी स्पोर्ट्स कोच को एक बार अपने करियर में जरूर पैरा एथलीट्स के साथ और नॉर्मल एथलीट्स के साथ काम करना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी डिफरेंट. इट्स अ वेरी डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर. जहां आप देख, क्योंकि एक एक मिलीमीटर के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं, एक एक मिली सेकेंड के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं, और रोज हम रिसर्चेस वेरी सारी बातें कर रहे हैं ताकि हम वो डिफरेंस क्रिएट कर पाए जो हम अपने एथलीट की ट्रेनिंग में चाहते हैं. सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, लाइक आई सेड. सो मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हाइड्रेशन अपने क्लाइंट्स के लिए अगर आप बात करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा लाइक ऐसे सप्लीमेंटेशन कुछ मैंने बात करी, बाकी हर चीज पर्सनलाइज होती है. इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते आप कि मैंने इसका उठाया और इसमें लगा दिया है, जो दीपा मैम पे काम किया वो किसी और पे भी काम करेगा, ऐसा नहीं होता. इसलिए आपको हर किसी के साथ कस्टमाइज एक प्लान बनाने की जरूरत होती है. हर किसी के साथ आपको बात करने की उस हिसाब से जरूरत पड़ती है. सो दिस इज आई थिंक अ स्मॉल टॉक दैट आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर people looking at the nutritional advice for para sports. So these slides are with Sandeep. I think he can send it to everyone. Any questions, Deepa ma'am? The questions that have come, can we get Tanya Daga? She wants to ask a question. Sure.
She had a Can I speak? particular. Yes, Tanya ji, you're there? Hello? Yes, ma'am. Yeah, so Tanya had a Hello. couple of questions. She wanted to know. Tanya, you go ahead. We can hear you. You ask your questions. Okay, ma'am, I'm having a primary cutaneous macular amyloidosis from the last 7 to 8 years. And I became an amputee last year, 2018. And Okay. after that, I pursued para sports. So, should I lower my protein consumption because of that primary cutaneous? Okay, ma'am, if you don't mind me asking, which sports do you go for? Which sports Tanya are ji, you? Tanya ji, Cycling, कौन सा game? कौन सा खेल आप खेल रही? paracycling. पैरासाइक्लिंग. So, ma'am, Paracycling. okay. क्या पहले आपको कभी इस प्रॉब्लम माइलॉइड की वजह से कभी आपको आपके डॉक्टर ने बोला है अपने प्रोटीन को कंट्रोल करने के लिए, या कभी आपके किडनी या उस पे कोई वैल्यूज पे कोई फर्क पड़ा है? Yeah, before that, I used to take normal diet and low protein. But after the accident, I never thought that. Doctor gave me initial extra keratin when I was hospitalized. They gave me keratin injections. Okay. So मैम इसमें हम ये कर सकते हैं कि आप एक बार अपना जो भी ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह वो मेरे साथ शेयर कर लीजिए. So we'll definitely look at how much protein is normal for you, and if there is a need, we'll definitely look at increasing. We do not want that you lose your muscle, a lot of muscle mass, because you are an athlete and you will require these muscle mass all your life. Okay. So what we can look at is we can look at the reports and we can look at your body weight, and based on the body weight, we'll definitely come out with a number. Okay. And then we'll look at how much protein we can give it to you based on your requirement. Okay. चिराग, एक क्वेश्चन और है कि जब भी आप कोई भी स्पोर्ट्स का न्यूट्रिशन डाइट आप देते हैं, तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप आप बार बार कह रहे हैं कि आपका ब्लड टेस्ट, बॉडी वेट, टाइप ऑफ स्पोर्ट, तो ये कौन कौन से बेसिक टेस्ट हैं एक सही न्यूट्रिशन डिसाइड करने के लिए जो नॉर्मली करा के फिर आप उनको गाइडलाइन मानते हैं? तो क्या क्या टेस्ट आप करते हैं एज अ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट? मैम इसमें बेसिक एक प्रोफाइल हम करते हैं LFT, which is लिवर फंक्शन टेस्ट, के लिवर ठीक से काम कर रहा है, किडनी ठीक से काम कर रहा है कि नहीं. उसके बाद हम देखते हैं HbA1c. HbA1c का मतलब होता है कि 3 महीने की ब्लड शुगर आपकी क्या है. अगर वो किसी कारण से वर्ष से ज्यादा है तो हमें ये देखना है कि हमें कार्बोहाइड्रेट कैसे कंट्रोल करना है. आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं दे सकते बिकॉज उसका शुगर ऑलरेडी ज्यादा है, प्री डायबिटिक सिचुएशंस है. थायराइड वैल्यूज कितने हैं. ओके. विटामिन डी क्या है, विटामिन B12 कितना है. मेल्स फीमेल्स के केसेस में अगर आप देखते हैं कि कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस है तो आप PCOD पैनल्स वगैरह फीमेल्स में देखते हैं. मेल्स में हम टेस्टोस्टेरोन पैनल देखते हैं कि टेस्टोस्टेरोन कितना है. ऐसा तो नहीं कि बहुत लो अमाउंट्स में टेस्टोस्टेरोन है जहां पर आपकी रिकवरी जो है वो काफी स्लो हो रही है. तो ये सारे मैम जो बेसिक टेस्ट है वो हम कराते हैं. उसके बाद कोई अगर स्पेसिफिक आपको दिख रहा है कि ऐसी चीज हो रही है तो देन वी लुक एट C-reactive प्रोटीन, होमोसिस्टीन की इन्फ्लेमेटरी लेवल्स बहुत ज्यादा तो नहीं है. ये सारे बेसिक टेस्ट हम कराते हैं, इससे ज्यादा भी इसकी जरूरत नहीं है. तो कहने का मतलब ये है कि बहुत साइंस लगती है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में. हम रैंडम कुछ भी उठा के नहीं खा सकते. वो हमें बहुत कॉन्शियस रहना है कि आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा और आपने खा लिया. एंड आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज जब मेरे साथ आप वर्क कर रहे थे तो बहुत चैलेंजिंग था. मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव किया गया है. मेरे किडनी फंक्शंस थोड़े से वीक हैं बिकॉज मैं पैरालिसिस, चेस्ट बिलो पैरालाइज हूँ. मेरा ब्लैडर भी कॉम्प्रोमाइज्ड है. मेरे को हाइपोथायरॉइड बहुत ज्यादा है. मैं 100 mg थायराइड गोली लेती हूँ. और सो आई कैन अंडरस्टैंड कि जब ये सारी चीजें वी हैव टू शेयर विद द डाइटिशियन एंड ओनली देन कैन वी कम टू अ कंक्लूजन ऑफ व्हाट इज द राइट डाइट. बिकॉज बहुत लोग चैट रूम में पूछ रहे हैं स्विमर की क्या डाइट होनी चाहिए, और सो देयर इज नो जनरल डाइट. आई थिंक इट इज केस टू केस बेसिस. शिवम तोमर जी हैं जो कहते हैं कि गेटोरेड इज हार्मफुल. आपका क्या इस पे टेक है? Ma'am, we are not saying good or bad. We are looking at a 4 to 8% carb solution. वो सोल्यूशन जो है उसका एब्जॉर्प्शन अगर आप देखते हैं, अगर आपने देखा होगा कि पहले डायरिया के जो केसेस होते थे उसमें भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स या ORS का घोल देते थे पहले, इसीलिए देते थे कि पानी का एब्जॉर्प्शन बेटर हो सके.
इसको कमर्शलाइज डेफिनेटली किया गया है कंपनीज जिन्होंने भी इस पे काम किया है, बट अगर आप वैसे देखेंगे इन द लॉन्ग रन ORS हर गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है, इलेक्ट्रॉल हर गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है। तो इसमें हमारा सिर्फ जो एम है वो हाइड्रेशन लेवल्स को मेंटेन करना है, किसी ब्रांड को प्रमोट करना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गेटोरेड पीजिए, आप ORS का भी गोल बना लेंगे, वो घर पे भी बन जाता है, तो वो भी वही सेम काम करेगा जो गेटोरेड ने कहा। एंड एक क्रेटिन के ऊपर बहुत मिथ्स हैं कि क्रेटिन बॉडी को टाइट कर देता है और परफॉर्मेंस के लिए हाथ को, शोल्डर को खुला नहीं रखता है। जहां तक मुझे याद है कि आपने मेरा क्रेटिन कंपटीशन डे तक भी बंद नहीं किया था, बिकॉज आप नहीं चाहते थे कि मसल लूज हो जाए और कोई भी पावर हम लूज कर जाएं। लेकिन मैंने कई एथलीट से सुना है कि अरे आप कंपटीशन के कुछ दिन पहले आपको क्रेटिन छोड़ देना चाहिए। तो क्या ये डिफरेंट कंपटीशन के हिसाब से डिफरेंट सजेशन आता है? मैम क्रिएटिन लाइक आई सेड आपकी मसल्स में होता है, आप अगर छोड़ भी देते हो तो कुछ परसेंटेज फिर भी आपकी मसल्स में रहेगा। क्रिएटिन के साथ सिर्फ एक जो इशू आता है वो वाटर रिटेंशन का है। आई एम श्योर आपने भी फेस किया है वो, जब हमने आपको भी क्रिएटिन दिया था तो आपको भी पता है कि वो चीज होती है थोड़ी सी। इसके अलावा और कोई क्रिएटिन से आपको कोई स्टिफनेस नहीं आता, इससे आपका कोई टाइटनेस नहीं बढ़ता। ये सिर्फ एक आई वुड से एक मिथ है वहां पर कि आपको लगता है कि ये नहीं लेना चाहिए। डेफिनेटली आपने अपने कंपटीशन डे तक क्रिएटिन लिया है एंड यू हैव सीन द रिजल्ट्स दैट वी हैव गिवन टुगेदर। सो ये बहुत आई थिंक एक मिथ वाला पोर्शन है कि क्रिएटिन से कोई ऐसा प्रॉब्लम है। लाइक ऐसे एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसने बहुत सारे रिसर्च पे काम हुआ है, इस पे बहुत सारे रिसर्चर्स ने एक साथ इस पे काम किया है। तो मुझे लगता है कि क्रिएटिन अगर आप रेगुलर भी लेते रहते तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें सिर्फ मिथ क्या आता है कि क्रिएटिन जब KFT आप टेस्ट कराते हैं तो उसमें वो क्रिएटिनाइन चेक करते हैं कि आपका किडनी फंक्शन अगर हमें चेक करना है कि वो काम कर रहा है कि नहीं, तो वो ये देखते हैं कि आपकी बॉडी से क्रिएटिनाइन, यूरिया, यूरिक एसिड ये सब नॉर्मली बाहर निकल रहा है, तो उसमें क्रिएटिनाइन वो चेक करते हैं ब्लड में। तो लोगों को लगता है कि क्रिएटिन लेने का मतलब आपका किडनी डैमेज हो रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं जी। वो एक टेस्ट जरूर है। मुक्ता जी हैं जो बार बार घी के बारे में पूछ रही हैं कि कितना घी एक दिन में हमें लेना चाहिए, क्या घी इज गुड फॉर हेल्थ? हम नेचुरली, जब मैं घी समझ रही हूँ तो उसको देसी घी समझ रही हूँ, तो कोई इसका कोई वो है कि इतना देसी घी हमें रोज खाना चाहिए या अच्छा है या बुरा है? मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि कुछ समय पहले तक घी पे बहुत बात होती थी कि घी मत खाइए और सब वेजिटेबल ऑयल्स पे शिफ्ट हो गए। अगर आप सनफ्लावर ले रहा है, कोई सफोला ले रहा है, और बहुत एडवर्टाइजमेंट किया गया। तो हमारा जो घी है वो ओमेगा, जो हमारा जो वेजिटेबल ऑयल्स है सफोला, सनफ्लावर, ओमेगा 6 में ज्यादा डील करते हैं। पर आजकल जो रिसर्च आ रहा है घी के ऊपर वो बहुत पॉजिटिव है, जो ये कह रहा है कि घी इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। घी जो है अगर आप घी में कुकिंग करते हो तो बहुत हीट स्टेबल रहता है। वेजिटेबल ऑयल्स जो है वो हीट स्टेबल नहीं रहते। आप एक बात को समझिए, चाहे आप वेजिटेबल ऑयल यूज करिए, सनफ्लावर, सफोला यूज करिए, तब भी कैलोरीज उतनी मिलने वाली है, और आप घी यूज करिए तब भी कैलोरीज उतनी मिलने वाली है। बट एक अच्छी बात यह है कि जब आप घी में कुकिंग करते हैं तो वो हीट स्टेबल होता है। ओके, वो हीट स्टेबल रहने की वजह से आपके जो न्यूट्रिशन है उसका लॉस नहीं होता। सैटिस्फैक्शन का मतलब होता है फीलिंग ऑफ स्टमक फुलनेस, कि आपका जो पेट है वो भरा रहे ज्यादा देर के लिए, ताकि आप कम खाएं, वो वाला काम भी करता है। तो हम ये बोलते हैं कि अब आपको कोई चीज अपनी डाइट से निकालनी नहीं है। आप कोशिश करिए कि मैं एक मील का खाना इनिशियली स्टार्टिंग में, एकदम से सारे नहीं, बट एक मील में भी लंच में घी में कुक करूंगा, या मैं डिनर जो है वो घी में कुक करूंगा, क्योंकि कैलोरीज तो सेम ही मिलने वाली है, कैलोरीज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप चाहे वेजिटेबल ऑयल में कुक कीजिए, चाहे आप घी में कुक कीजिए। पर एक अच्छी चीज आजकल ये निकल के आ रही है कि आप घी में जब कुक कर रहे हैं और बेटर न्यूट्रिएंट्स को, हीट स्टेबल है उसको रख पा रहे हैं, तो आपके लिए वो बेनिफिट में काम करेगा। अगेन एक्सेसिव नहीं, बट जो लिमिट है आपकी कि आपकी 25% कैलोरी शुड कम फ्रॉम फैट, तो उस 25 का कुछ परसेंट आप घी से ले सकते हैं। जी, सौरभ कुमार है, वो पूछ रहे हैं कि आई एम एक मिनट, उनका क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर चला गया, वेट, अगर मैं तो हाँ, I am a street lifter and my weight is 60 kg. So what amount of calories I will have to take to increase my heavy lifts? Should I take any supplement for lifting heavy weights? So I think more or less हमने ये cover किया है। लेकिन एक क्वेश्चन आगे आया है कि what are the side effects? ये आनंद राजू जी हैं, he wants to know कि what are the side effects of these supplements? ये भी बहुत डर लगता है लोगों को कि क्या साइड इफेक्ट हो जाएगा, या क्या हम
खाना जब बंद कर देंगे तो वो साइड इफेक्ट्स या एक एथलीट्स में अक्सर बात चलती है, जैसे मैं भी जब स्पोर्ट्स कर रही थी एंड ऑब्वियसली मेरा थोड़ा सा वेट गेन एज के साथ भी हुआ, मेनोपॉज के साथ भी हुआ। मेनोपॉज में मैंने 6-7 kgs वेट किया और वो कोइंसाइड करता था मेरी शॉर्ट पुट की तैयारी से और जो मैंने स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन लिया। तो मुझे अक्सर लोगों ने पूछा कि आपने वॉश आउट किया था सब कुछ, आपने ये जो सप्लीमेंट खाया या आपने क्रिएटिन खाया या प्रोटीन खाया, आपने उसको वॉश आउट, तो ये क्या मिथ है वॉश आउट करने का? ये भी थोड़ा सा आई वांट यू टू स्पीक अबाउट। Ma'am, there is nothing called a washout. There is nothing called a detox. Okay. ये सबसे बड़ी मिथ हैं और ये लोगों ने प्रमोट कर रखी है just to earn money. There is nothing. You have your liver that will detoxify your body. Once something is in your body, can you wash it out? एक चीज मुझे समझाइए. It's not something that जो एक बार अंदर चला गया, उसने अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दिया, उसने अपना माइक्रो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दिया. There is nothing called washing out. Okay. ये मिथ जो है ये डिफरेंट स्पोर्ट्स से जरूर आया है, बट ये नॉर्मल स्पोर्ट्स पे या किसी भी खाने पे नहीं लगता. फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा साइड इफेक्ट्स की हम बात करते हैं मैम, जो वे प्रोटीन है वो दूध से बना है. क्या दूध के कभी साइड इफेक्ट सुने आपने? आपने सुना किसी को बोलते कि दूध तूने ज्यादा पी लिया अब तू वॉश आउट करेगा दूध का? नोबडी हैज एवर सेड दैट. कभी आपने सुना किसी ने बोला तूने मटन ज्यादा खा लिया अब तू वॉश आउट करेगा? नोबडी हैज एवर डन दैट. मटन अगर आप खा रहे हो तो आप खाते हो बिकॉज दैट इज गिविंग यू न्यूट्रिशन. और हमारा यहाँ पर एम सिर्फ यही है कि जो न्यूट्रिशन मेरी बॉडी में नहीं पहुंच पा रहा किसी कारण से, मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरे को क्रिएटिन नहीं मिल पाएगा वेजिटेरियन सोर्सेज से, तो मुझे कहीं ना कहीं से उसको लेना है ताकि मेरी परफॉर्मेंस बेटर हो. अब वो मेरे को नहीं मिलेगा दलिया में, वो मुझे नहीं मिलेगा चावल में, वो मुझे मिलेगा रेड मीट में. वो चिकन में भी नहीं मिलने वाला मुझे इतनी क्वांटिटीज में, मुझे रेड मीट में ही मिलेगा. बट अगर मेरे स्पिरिचुअल बिलीव्स वो अलाउ नहीं करते तो क्या मैं अपनी परफॉर्मेंस को कम होने दूं? And these are the things. These are the things. एक क्वेश्चन आ रहा है जिसको मैं ही रिजेक्ट करती हूँ. एक क्वेश्चन आ रहा है चैट रूम में कि साइड इफेक्ट्स ऑफ स्टेरॉइड्स. तो हम यहाँ पे स्टेरॉइड्स की बात कर ही नहीं रहे हैं. हम कोई भी ऐसे प्रोहिबिटेड मैटर या सब्सटेंस की बात यहाँ नहीं कर रहे, क्योंकि हम डेफिनेटली मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स का ये सेशन है जिसमें हम वाडा और नाडा का रिस्पेक्ट करते हुए ही स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं. So we will not talk about any steroids because that is a big no. Say no to any such substance. That is my request. Rajendra Singh Rahelu हमारे पावर लिफ्टर हैं और उनका क्वेश्चन आया है, what is the best cooking oil medium? Sir, keep 2-3 oils in your kitchen. I would say don't use only one oil. हर oil का एक benefit होता है, हर fat का एक benefit है. अच्छी बात यह है कि सबने 9 कैलोरीज ही देनी है. तो आप चाहे सनफ्लावर ऑयल यूज करिए, चाहे सफोला यूज करिए, चाहे कैनोला ऑयल यूज करिए. तो जिस तरह का खाना आप बनाए, जैसे आपने अगर एक पनीर वाली सब्जी बनानी है तो वो घी में अच्छी बनेगी. ओके, आपने साउथ इंडियन बनाना है तो कोकोनट ऑयल में बेटर बनेगा. ओके, तो इस तरह से आप कोशिश करिए कि 3 या 4 ऑयल्स रखिए और हर मील एक डिफरेंट ऑयल में कुक कीजिए ताकि आपको सारे फैट्स का बेनिफिट मिले, ना कि सिर्फ एक तरह के फैट का बेनिफिट मिले. कि आप सिर्फ सफोला यूज करते हैं तो सिर्फ उसका बेनिफिट नहीं चाहिए, आपको हर ऑयल का बेनिफिट चाहिए. So that has been an amazing session. Thank you, Chirag. Questions are many. They are there in the chat box. We have had 1 hour of very interesting session, and thank you so much. It was amazing to go through the whole journey, and we are looking forward for tomorrow's session now. बहुत लोग पूछ रहे हैं चिराग आपके email ID के लिए. So would you like to give your email ID or your some kind of a contact detail here? So if some people are interested, but let me tell you, गाय घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? Everything comes with a cost, and I was able to afford Dr. Chirag Sethi because thanks to Target Olympic Podium scheme that gave me the funding to afford a proper qualified sports nutrition and dietitian for myself. But if anybody wants to volunteer, and we are looking at para sports, so कोई भी dietitians या nutritionist including Chirag sir, अगर कोई volunteer based workshop या
once in a month counseling session. ऐसा कुछ offer हमें देना चाहते हैं, तो we will look forward to such an offer. We can discuss that later on. I don't want you to make any promises because I know this is a profession for you. No, ma'am, definitely we can look at. Definitely, if there are Yes. some promising talent, we can look at it. And I've put down my email address also in the chat. So anybody who Okay, has. so in the chat box, Dr. Chirag Sethi has put his ID. You can connect. You can. So online presence भी अगर आप एक बार बता दें, so they'll probably look for you on So online. on Instagram, my ID is Chirag April 9, and on Facebook, my name is Chirag Sethi. Okay. So thank you so much. And like I said, we will be looking forward to another session tomorrow at 3 p.m. So we are signing off for now. Thank you all for joining, and thank you, Dr. Chirag, Thank you. for giving an insight into the importance of sports nutrition. Look forward to meeting you all tomorrow again. Thank you so much.